हैव सीन इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुई, देन फॉरेन ट्रेड सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुई. Now is the time to evaluate, that is the critical appraisal of industrial development, that is from the year 1950 to the year 1990. इन 40 years में हमने क्या प्रोग्रेस किया और कैसा था वो प्रोग्रेस एक्चुअली, हाउ मीनिंगफुल, हाउ सक्सेसफुल इट वाज. The achievements of India's industrial sector during the first 7 plans are impressive indeed. Of course, उसके जो हमने जो भी चेंजेस लाए, जो भी प्लान्स हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, हम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहे. ठीक है, दे वर इम्प्रेसिव. The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 11.8% in the year 1950-51 to 24.6% in the year 1990-91. That means 11.8 से हम कहाँ पहुँचे, 24.6 पे. इन 40 years में हम यहाँ से यहाँ तो पहुँच गए. This rise in the industry's share of GDP is an important indicator of development. The 6% annual growth rate of the industrial sector during this period is also admirable. That means जब इंडिया के पास में resources नहीं थे, हम लोग just independent हुए थे, हमने अपने दम पे planning करी, हमने उन plans को successfully implement किया and हमने achieve किया 6% annual growth rate in the industrial sector at that time, which is very much appreciated. ठीक है, appreciable है ये चीज. Second point was Indian industry was no longer restricted to cotton, textile and jute industries. It also included engineering goods and a wide range of consumer goods. The industrial sector was well diversified by the 1990, largely due to the role of public sector. That means अब हमारे पास में सिर्फ आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज या फिर सिर्फ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स नहीं थी. ठीक है, हमारे पास में और इंडस्ट्रीज डेवलप हुई. वी हैड इंजीनियरिंग गुड्स, वी हैड वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी बाय द ईयर 1990. Further, the promotion of small scale industries gave opportunities to people with small capital to get into business. That means government ने मुझे let's say एक मौका दिया, भले मेरे पास कैपिटल कम है लेकिन फिर भी मैं बिजनेस में आ सकती हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर सकती हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट टुक सम स्टेप्स फॉर मी, उन्होंने मुझे चांस दिया. दैट्स व्हाई आई कुड गेट इनटू द बिजनेस. New investment opportunities helped in the generating more employment and promoted the growth with equity. That means क्या हुआ, नई employment opportunities generate हुई, rural areas में development हुआ, economically backward areas में especially हमारे बहुत ज़्यादा development हुआ, and हमारा जो growth के साथ में equity achieve करने का motto था वो fulfill हो गया. Then protection from foreign competition through import substitution enabled the development of indigenous industries. That means हमारे कंट्री के विद इन डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे फॉरेन कंपटीशन नहीं था, इसी वजह से इंडिजीनियस मतलब कंट्रीज के अंदर एस्टैब्लिश हुए हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर. In the areas of electronics and automobile sectors, which otherwise could not have developed, however, this protection had टू ड्रॉबैक्स. गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया वो तो अच्छा हुआ, बट इस कंपटीशन के 2 ड्रॉबैक्स थे, मतलब 2 नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकले. क्या था, पहला तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. दैट मीन्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, हमने सिर्फ इंपोर्ट रोकने की कोशिश करी, हमें एक्सपोर्ट सेक्टर पे भी तो ध्यान देना था, वो तो हमने किया ही नहीं, राइट. Our policies were inward oriented and so we failed to develop a strong export sector. We became self-reliant, we stopped import, but we could not increase our exports, which was one of the drawbacks of import substitution policy. The second drawback was lack of competition. Due to the restriction on imports, some domestic producers made no sincere efforts to improve the quality of their goods, and it forced the Indian consumer to purchase whatever is produced by them. The domestic industry failed to achieve international standard of product quality. मैंने आपसे पहले ये बात की थी कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि पहले हम इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करते हैं, पहले हम कंपटीशन नहीं आने देंगे ताकि हमारे इंडस्ट्रियल बेस सेटअप हो जाए, लोग प्रोडक्शन करें पहले, ठीक है, बाद में हम क्वालिटी पे काम करेंगे. बट हुआ क्या, क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई, बिकॉज उन्हें पता था कि मार्केट में हम ही सर्वाइव करने वाले हैं, कंपटीशन तो है नहीं फॉरेन मार्केट से. तो उन्होंने जो गंदे क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करे, पीपल वर फोर्स्ड टू बाय देम बिकॉज देयर वाज नो चॉइस लेफ्ट विद द पीपल. ठीक है, उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था. एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी को तो हम मैच ही नहीं कर पा रहे थे. डोमेस्टिक हमारी जो क्वालिटी थी, दे फेल्ड टू मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्वालिटी.
According to some economists, we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nations continue to do so. That means क्या बोला जा रहा है कि कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि हमें फिर भी प्रोटेक्शन देना चाहिए क्योंकि अभी तक हमारा इंडस्ट्रियल बेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है और रिच नेशंस अभी भी कंपटीशन दे सकते हैं. Licensing policy helped the government to monitor and control industrial production. However, excessive regulation by the government had created two difficulties. That means क्या बोला जा रहा है कि हमने industrial licensing निकाला, we were trying to control the private sector, we were trying to keep an eye on the private sector, but again there were two main difficulties which were misuse and time consuming. Misuse means क्या था, लेट्स से मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल फर्म हूँ, ठीक है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, तो मैंने क्या किया, एक दो लाइसेंसेस ले लिए, ठीक है. अब क्या हुआ, मैंने लाइसेंसेस ले लिए, मैं प्रोडक्शन करती हूँ, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि मेरे ऑलरेडी है ना ये इंडस्ट्री बहुत प्रोडक्शन कर रही है, इस पर्टिकुलर गुड की उतनी डिमांड नहीं है. उससे क्या होता है, मैंने मिसयूज़ किया ज़बरदस्ती लाइसेंस लेके और कोई और इंडस्ट्री भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाइसेंस ले लिए, मैं ऑलरेडी बहुत प्रोडक्शन कर रही हूँ. तो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज ऐसा करते थे, ठीक है, वो लोग अपने नाम पे लाइसेंस ले लेते थे एंड दे यूज्ड टू स्टॉप द कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर फर्म्स. That is, it was misused by industrial houses. Some big industrialists would get a license not for starting a new firm. जरूरी नहीं उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं किया, but to prevent competitors from starting new firms. ठीक है, उन्होंने लाइसेंस ले लिया, ऑलरेडी बहुत लाइसेंस अगर इशू हो गए इनकी इंडस्ट्री में, तो गवर्नमेंट फिर क्या बोलेगी कि ठीक है हमने ऑलरेडी 5-10 लाइसेंस दे दिए, अब आप कुछ और स्टार्ट कर लो, ठीक है. तो दे वुड डू दिस टू प्रिवेंट द कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यू फर्म्स. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग. हमने पहले भी देखा था कि अगर आपको नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है लाइसेंस लो, एग्जिस्टिंग को एक्सपैंड करना है लाइसेंस लो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना है लाइसेंस लो, हर चीज़ के लिए बार बार जाकर लाइसेंसिंग की परमिशन लो गवर्नमेंट से. सो इट वॉज क्वाइट हेक्टिक फॉर द इंडस्ट्रीज. The cumbersome and complex procedure for obtaining a license was very time consuming and a lot of time was spent by industrialists trying to obtain a license. Again and again they have to go to government for a license, so which became a very hectic procedure. ठीक है, next point देखेंगे which is about the public sector. Public sector made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing the infrastructure and promoting the development of backward areas. गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए, पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छा रोल किया, फिर भी क्रिटिकल अप्रेजल में इनका अभी आगे हम देखने वाले हैं कि कुछ चीज़ें थी जहाँ पे ये लोग ने लैक भी किया. ठीक है, गवर्नमेंट वॉज स्टिल लैकिंग इन मेनी थिंग्स. उन्होंने बहुत कोशिश की बट स्टिल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब PSUs वर फेलिंग, दे वर नॉट जनरेटिंग द प्रॉफिट्स, राइट. However, the public sector continued to monopolize, that too ineffectively, in certain non-essential areas which could be well handled by the private sector. That means कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, फिर भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ से वो सेक्टर्स नहीं जाने दिए. लेट्स से बहुत बेसिक ले लेते हैं, टेलीकम्युनिकेशन या होटल इंडस्ट्री. अभी होटल इंडस्ट्री गवर्नमेंट अकेले मैनेज नहीं कर सकती, BSNL से आप नहीं चला सकते हो, ठीक है. वी नीड मोर नेटवर्क्स, वी नीड मोर होटल्स. तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकता था, बट गवर्नमेंट ट्राइड टू मोनोपोलाइज दो सेक्टर, दैट टू इनइफेक्टिवली. दैट मीन्स उतना इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं था. For example, telecommunication, hotel industry, production of goods like modern bread, etc. यहाँ पे गवर्नमेंट ने ट्राई किया to monopolize these sectors. As a result, precious funds of public sector were channelized into areas where the private sector could have been easily engaged. यहाँ पे क्या था, प्राइवेट सेक्टर को आप चांस दे सकते थे कि आप इजीली एंगेज करके आप ट्राई करो, आप इसको अच्छा करो इस इंडस्ट्री को. बट यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रेशियस फंड्स बहुत सारे जो थे वो वेस्ट हो गए थे. ठीक है, नेक्स्ट क्या बात हो रही है यहाँ पे, मेनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स ऑल्सो इंकर्ड ह्यूज लॉसेस बट कंटिन्यू टू फंक्शन बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन क्लोजिंग अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉसेस सफर कर रहे थे, स्टिल गवर्नमेंट क्लोज नहीं करे थे बिकॉज ऑलरेडी बहुत पैसा लगा चुके थे और अगर अभी बंद करेंगे तो बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी डिसॉल्व करने में इन कंपनीज को. The monopoly of the public sector in such non-essential areas was criticized by many scholars. According to them, the role of public sector should be limited to a strategic area like national defense, and the private sector should be given the opportunity for the non-essential areas.
जो ऑफकोर्स मिक्स्ड इकोनॉमी में होना चाहिए. गवर्नमेंट वुड शुड जस्ट फोकस ऑन द एसेंशियल एंड द नेसेसिटीज एंड लेट द प्राइवेट सेक्टर फोकस ऑन द नॉन एसेंशियल एरियाज. ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का काम नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं पढ़ना चाहिए इन शॉर्ट. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट द पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स बट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन. पब्लिक सेक्टर क्या कर रही थी, कुछ सेक्टर्स को होल्ड करके रख रही थी. दैट मीन्स दे वर इन सम ग्रीड. ठीक है, दे वर ट्राइंग टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम दो सेक्टर बट वो नहीं संभाल पा रहे थे. स्टिल वो लूज नहीं कर रहे थे, मोनोपोली छोड़ नहीं रहे थे, जबकि प्राइवेट सेक्टर उसमें और अच्छा परफॉर्म कर सकता है. दैट्स वाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर को ध्यान देना चाहिए कि प्रॉफिट्स नहीं अर्न करने, उन्हें सिर्फ कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज पे ही ध्यान रखना है, जैसे कि नेशनल डिफेंस हो गया. So they should be evaluated on the basis of their contribution to the welfare of the people and not on the profits they earn. तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की इज्जत बची रहेगी, वो लोग सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे और उनका प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव नहीं होना चाहिए. ये होगा क्रिटिकल अप्रेजल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ऑफ लेसन नंबर चैप्टर नंबर 2. ठीक है, हमने जो भी पढ़ा अभी तक उसका कंक्लूजन देख लेंगे एक शॉर्ट में. The progress of Indian economy in the three sectors can be summarized as under. सबसे पहले था एग्रीकल्चर सेक्टर. क्या थे उसमें, रिवाइज करो अगेन. लैंड रिफॉर्म्स थे, ग्रीन रेवोल्यूशन था. लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ, हमने देखा कि जमींदारी सिस्टम जो था वो एबॉलिश हो गया और हमने क्या देखा, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ये दो मेजर और अच्छे चेंजेस इंडिया ने नोटिस किए इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. सेकेंड वॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या देखा कि उन्होंने शेड्यूल ABC बनाया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेके आए. ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आप देखो, द इंडस्ट्रीज बिकेम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू द सिचुएशन एट इंडिपेंडेंस. However, excessive government regulation prevented their growth. That means diversification हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई. अब हमारे पास में सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्रीज नहीं थी, भी डाइवर्सिफाइड, बट देयर वर लॉट ऑफ लाइसेंसिंग, लॉट ऑफ रेगुलेशन, जिसकी वजह से ग्रोथ हैम्पर हुआ. उसके अपार्ट क्या हुआ, मैनी इकोनॉमिस्ट वर डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर जो हमने देखा इसके पहले, दे वर नॉट परफॉर्मिंग सो वेल, दे वर परफॉर्मिंग इनइफेक्टिवली, जिसकी वजह से बहुत सारे फंड्स वेस्ट हुए. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा सफ़र किया इंडिया ने. नेक्स्ट वन इज ट्रेड सेक्टर. ट्रेड सेक्टर में क्या था, इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर डेवलप नहीं हुआ एंड द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन. इसकी वजह से क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस तो हुआ, बट हमारे यहाँ पे क्वालिटी, ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स, उसके लिए हमने कोई स्टेप नहीं लिया, हम नहीं ले पाए, बिकॉज हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे थे फ्रॉम द फॉरेन मार्केट्स. The need for reform of economic policy was widely felt in the context of changing global economic scenarios. That means क्या बोला जा रहा है कि अभी तक जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, ठीक है, फार सो गुड, बट स्टिल हमने देखा कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो इसके बाद में क्या बोला जा रहा है, वी नीडेड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. दैट वाज NEP was initiated in the year 1991 to make our economy more efficient. जिसके बारे में NEP 1991 के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इन चैप्टर नंबर 3. So this was all about chapter number 2, that is Indian economy from the year 1950 to 1990. Keep watching and keep learning.